Okay, good morning, everyone. So, in the last lecture, we completed joint Hindu family, right? Today, we will first complete joint stock company and cooperative society उसके बाद देखेंगे, ठीक है? अच्छा, अब ये जो joint stock company है, इसको important mark कर लो. This is a very, very important question which can come from this chapter. Joint stock company के features, उसके merits, demerits, तीनों ही चीजें equally important हैं, ठीक है? So let us read what is it all about. Let us read the introduction. You must have heard about Reliance Industries Limited, Tata Steel Limited, Steel Authority of India, Maruti Udyog Limited. So यहाँ पर आपको कुछ companies के नाम दिए हुए हैं, ठीक है? Who are the owners of such large organizations? Such organizations spread all over the world. How they are formed and managed, let us learn about these organizations. ठीक है? तो स्टार्टिंग में आपको उन्होंने they have given you all the examples of some companies and they have asked you all the questions. अब वो क्वेश्चन के आंसर हमको आगे मिलने वाले हैं, that how they are formed, what are the advantages, why were they formed, so on and so forth. ठीक है? Okay, after the industrial revolution there was a drastic change in the traditional forms of business. Correct? Industrial revolution के बाद there was a drastic change in the traditional form of business. In this period, new firms were introduced, which is named as a joint stock company. The joint stock company starting से नहीं है. It came into existence after the industrial revolution. ठीक है? They required more capital, other resources than sole trading concern and partnership firm. Okay. तो अगर मैं बात करूं, what do you mean by the term traditional business? ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में कौन सी चीजें आएंगी? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म. ये चीजें ना स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है. लोग या तो खुद से बिजनेस करते हैं या तो कोई पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं, ठीक है? तो commonly right from even before industrial revolution, only these two business organizations were there. Which one? Sole trading concern and partnership firm. After industrial revolution, joint stock company has come into picture. ठीक है? तो आपको जब भी joint stock company का इंट्रोडक्शन लिखना है, so concentrate on the second para. आप फर्स्ट पैराग्राफ नहीं लिख सकते हो. फर्स्ट पैराग्राफ में से आप ये जो कंपनीज के नाम है ना, उनको एग्जाम्पल्स क्रिएट करो. ठीक है? I'll just explain this in brief. So whenever you are supposed to write an introduction of joint stock company, start with the second para. Start your answer with after industrial revolution there were drastic changes, ठीक है? So on and so forth. फिर second paragraph पूरा लिख लो. उसके बाद after writing the second para, leave a line and then write down example. Example में write down Reliance, Tata Steel, Steel Authority, Maruti उद्योग. तो ये आपने क्या किया? आपने बता दिया इंट्रोडक्शन में कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आई थी और फिर आपने एग्जांपल्स दे दिए. ठीक है? सो दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन. Okay, come to the meaning part. A joint stock company is a voluntary association. Now, I'll tell you all something. मीनिंग में ना सारे फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है? तो एक बार हमारे सारे फीचर्स हो जाएंगे ना पढ़ के, तो आप मीनिंग खुद से भी लिख सकते हो. आई जस्ट रीड इट आउट. Okay, so it is a voluntary association who generally contributes capital, carry on a particular type of business. Okay, total capital of the joint stock company is called as share capital. It is divided into small units called as shares. ठीक है? Every member holds some shares. These members are called as shareholders. ठीक है? तो इन शॉर्ट करना क्या है? मीनिंग में आपको जो भी हम फीचर्स पढ़ने वाले हैं ना, फीचर्स के सारे सब हेडिंग लिख के आप मीनिंग क्रिएट कर सकते हो. In India, every joint stock company is registered as per the Companies Act 2013. इसको highlight कर लो. This can come as a fill in the blank. कि joint stock company कहाँ register की जाती है? It is registered as per the Indian Companies Act 2013. Sorry, the Companies Act 2013, not the Indian Companies Act. ठीक है? अच्छा, basically joint stock company में जो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं. ठीक है? तो क्या लिखा है? एवरी मेंबर होल्ड्स सम शेयर्स. दीज मेंबर्स आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स. है ना? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बहुत ही बड़ा ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जो डायरेक्टर्स हैं, द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आल्सो कंट्रीब्यूट कैपिटल, एंड द आउटसाइड पब्लिक who are interested in investing in the company, they also contribute capital.
और ये जो बाहर की पब्लिक है जो कैपिटल इन्वेस्ट करती है उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। कम टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर L.H. Haney, a joint stock company is a voluntary association of individuals for profit, capital divided into transferable shares, ownership of which is the condition on membership. Okay, I'll first explain this bit by bit. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या कहा, जो बाहर की पब्लिक है अगर उनको कंपनी में इंटरेस्ट है तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई टेक माई एग्जाम्पल, नाउ सपोजिटली आई हैव इंटरेस्ट इन रिलायंस कंपनी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने मार्केट से रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ओके। सो नाउ आई बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द रिलायंस कंपनी, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर so all the shareholders, they are the members of the company and the owners of the company. See, मैंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, तो मैं आई एम नॉट सेइंग आई विल बिकम द 100% ओनर, नो नो नो, I have invested in the company, so I have partial ownership, correct। ओन तो करती हूँ ना मैं कंपनी को, although I don't own it 100%, सपोजिटली मैंने सिर्फ 20% के शेयर्स खरीदे, सो मेरा कहीं ना कहीं ओनरशिप तो है ना। सो यहाँ पर देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। मतलब क्या, इफ यू वांट टू गेट द मेंबरशिप, उसके लिए आपको पहले ओनर बनना पड़ेगा। और आप ओनर कैसे बनते हो, बाय परचेसिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। सो वंस यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यू ऑल्सो बिकम द ओनर, और ओनर जैसे ही बन जाओगे तो मेंबर भी बन जाओगे, ठीक है। सो इफ आई से अ शेयर होल्डर हैज टू कैपेसिटीज, one, he also becomes the owner, and as soon as he becomes the owner, he also becomes the member, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, अब यहाँ पर ना एक टर्म लिखा हुआ है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। यहाँ पर आपका फोकस जाना चाहिए, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। इसका मैं डिटेल में तो आपको बताऊंगी, बट अभी भी सुन लो। देखो, आपको किसी ने फोर्स किया है क्या, मुझे किसी ने फोर्स किया है क्या कि रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट कर? नोबडी हैज फोर्स्ड मी, I have, on my will, bought the shares of the Reliance company from the market. So nobody has, kept a compulsion on me to go and buy the shares. ये मैंने अपनी अपनी इच्छा से जाके मैंने शेयर्स खरीदे, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको शेयर्स खरीदने ही है। So whenever I want, I will go and purchase the shares. Whenever I want, I will go and sell the shares. कोई मुझे रोक नहीं सकता है कि नहीं नहीं अभी तुमने लिया है ना, तो अभी तो तुम परमानेंट शेयर होल्डर बन गए, so you are the shareholder for the lifetime of the company. No. So whenever I want, I can purchase. Whenever I want, I can sell. अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी लॉसेस में डूबने वाली है, so is there any logic to hold the shares? No. So when I say that there is no future of the company, simply I will go and sell the shares, correct? तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। आप कभी भी शेयर होल्डर बन सकते हो, आप कभी भी अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो, ठीक है। यू डू नॉट, एज अ शेयर होल्डर, यू डू नॉट हैव टू टेक एनीबडीज परमिशन, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट क्यों करते हैं कंपनी में, क्योंकि उनको रिटर्न्स चाहिए, करेक्ट। यहाँ पर रिटर्न्स को क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो कंपनी, अगर मैं आज एक कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, ओके, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी ने कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया कि इस साल हम अपने शेयर होल्डर्स को 20,000 देने वाले हैं टोटल, 20,000 नॉट एवरी शेयर होल्डर, बट 20,000 इज द टोटल डिविडेंड। तो एक शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा, सो 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, जितना आता है इक्वल टू करके, दैट इज द अमाउंट पर शेयर होल्डर विल गेट, ठीक है। ओके, अब आपको चाहिए तो वो आप वो प्रोफेसर हैनी का लिखो, या तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस वन, द थर्ड वन, ये बहुत ही इजी है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, the term company
means a company which is incorporated under the Companies Act 2013 or any other previous company law. ठीक है, so if you want you can write down this और प्रोफेसर हैनी का भी इजी है. आप जब हमारे ये फीचर्स हो जाएंगे you will be able to even recall that particular definition. ठीक है, तो आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो. आपको 3 डेफिनेशंस दिए हैं, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम एंड यू कैन राइट. तो जब भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर आंसर आता है, सपोजिटली क्वेश्चन में आता है फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो अपना आंसर स्टार्ट कैसे करोगे? फर्स्ट यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया है. फर्स्ट यू हैव टू राइट द सेकंड पैरा, और फर्स्ट पैरा में जो सारे कंपनीज के नाम दिए हैं आपको उसका एग्जाम्पल क्रिएट करना है. एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी, उद्योग, मारुति उद्योग, व्हाटएवर इट इज. ठीक है, उसके बाद यू हैव टू राइट द मीनिंग. मीनिंग में भी वही चीजें, वही वर्ड्स यूज किए हैं जो हम अभी फीचर्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, एंड देन कम्स द डेफिनेशन. डेफिनेशन के बाद यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर आपको एज इट इज जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसे ही फॉलो करना है. अगर फीचर्स पूछा है तो आपको डायरेक्टली फीचर्स के साथ स्टार्ट नहीं करना है. ठीक है, चलो लुक एट द फर्स्ट फीचर, वॉलंटरी एसोसिएशन. अभी मैंने आपको इसका मतलब बताया. आप अपने मर्जी के मालिक हो, आज जाके शेयर्स खरीदे, आज जाके खरीदो, कल वापस से उसको सेल करना है, यू कैन सेल इट. ठीक है, सो आई रीड द पॉइंट. ओके, पर्सन ऑफ एनी कास्ट रिलीजन कैन बिकम द मेंबर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. मतलब क्या, ऐसा कोई एलिजिबिलिटी है क्या दैट ओनली हिंदू पीपल कैन बिकम शेयर होल्डर्स, है ना? सो देयर इज नो कास्ट डिफरेंशिएशन, राइट? तो ऐसे कोई कंडीशन नहीं है. तो पर्सन ऑफ एनी कास्ट and of any religion can become the member of the joint stock company. ठीक है, there is no restriction regarding number of shares purchased by one person. मतलब क्या, आपको वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि supposedly today I want to purchase 50 shares, so they cannot tell you no, minimum आपको 100 तो खरीदने ही पड़ेंगे, है ना? तो नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, या अगर आज मैं जाके 100 शेयर्स खरीदती हूँ, so they will not tell me कि no you can purchase only 50 shares at a time. So there is no restriction regarding the minimum and the maximum number of shares which can a person purchase. ठीक है, आगे क्या लिखा है? After death, shares of any shareholder are transferred to his nominees. तो अब आज मैं शेयर होल्डर हूँ and if I die, so my shareholders will get transferred to my nominees. Suppose नॉमिनी के नाम पर जब मैं फॉर्म भरती हूँ तो नॉमिनी के नाम पर मैंने अपनी मम्मी का नाम लिखा है. सो आफ्टर माय डेथ माय मदर बिकम्स द शेयर होल्डर. ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. मतलब क्या, आज मैं शेयर होल्डर हूँ और मुझे लगता है कि कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, जाके मार्केट में वो शेयर्स को बेच देती हूँ, है ना? तो मुझे कोई परमिशन की लेने की जरूरत नहीं है. इसलिए क्या लिखा है? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. तो मैंने अगर आज शेयर्स जाके बेच दिए, मतलब क्या किया, मैंने शेयर्स को ट्रांसफर किया, करेक्ट? सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. आई डू नॉट नीड टू टेक परमिशन ऑफ एनी पर्सन बिफोर डूइंग दैट. ठीक है, अब यही कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को वॉलंटरी एसोसिएशन कहा गया है. ओके ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन. कंपनी तो सपोज हमने बना ली, अब रजिस्टर कहाँ करना है ये लिखा हुआ है. रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. ये भी ब्लैंक के लिए आ सकता है कि रजिस्ट्रेशन इज डैश अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट. मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, कंपल्सरी या वट एवर इट इज, नन ऑफ द अबव, ऐसे कुछ आ सकता है. तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है. ठीक है, आगे देखो, एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट शुड बी सबमिटेड टू द ROC, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. नेसेसरी रजिस्ट्रेशन फीस आर टू बी पेड बाय द प्रमोटर्स. मतलब क्या, आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जब आप कंपनी बना रहे हो. किसको सबमिट करने पड़ेंगे? ROC को. और डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त आपको कुछ फीस भी पे करनी है. और फीस कौन पे करेगा? प्रमोटर्स. हु आर प्रमोटर्स? प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिनके पास इनिशियल आइडिया आती है टू स्टार्ट विद द कंपनी. ओके, तो आज यहाँ पर घर बैठे बैठे मैं सोचती हूँ दैट आई शुड स्टार्ट विद द कंपनी. मैं एक कंपनी बनाती हूँ और कंपनी का बिजनेस ये रहेगा, तो मैं कौन बन जाती हूँ? आई बिकम द प्रमोटर. प्रमोटर इज द पर्सन हु गेट्स द इनिशियल आइडिया टू स्टार्ट विद द कंपनी. तो स्टार्टिंग में तो प्रमोटर्स ही रहेंगे कंपनी में, तो दे हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? अब आपने सपोजिटली डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए, फीस पे कर ली. ठीक है,
उसके बाद अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इश्यूड टू द कंपनी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अब आरओसी क्या करता है, आरओसी आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं वो वेरीफाई करेगा कि सही है कि नहीं है, इनकम्प्लीट है, एक्यूरेट है कि नहीं है, ऑल दीज थिंग्स, एंड देन द आरओसी विल इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वो सर्टिफिकेट इशू करने के बाद ही आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। क्या लिखा है, अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इश्यूड टू द कंपनी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, a private limited company can immediately start its business after getting incorporation certificate. A public company must obtain certificate of commencement of business to start its business. Okay, इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जो सर्टिफिकेट्स है ना वो दो तरह के हैं, एक है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक है सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब कंपनीज दो तरह की होती हैं, करेक्ट, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी, करेक्ट। तो यहाँ पर इन्होंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद प्राइवेट कंपनी इमीडिएटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगी। ठीक है, बट पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी चाहिए और सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस ये भी चाहिए। तो क्या पब्लिक कंपनी सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद बिजनेस स्टार्ट करेगी? द आंसर इज नो। पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी चाहिए, बिजनेस का भी सर्टिफिकेट चाहिए, ये मिलने के बाद पब्लिक कंपनी विल स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, सो पब्लिक कंपनी नीड्स बोथ द सर्टिफिकेट्स whereas private company needs only the first certificate, that is certificate of incorporation. Am I clear to this? सबको समझा है? सो प्राइवेट कंपनी को कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और पब्लिक कंपनी को कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? पब्लिक कंपनी को दोनों सर्टिफिकेट्स चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस भी चाहिए, उसके बाद ही वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट्स को इश्यू कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी। सो हु इश्यूज दीज सर्टिफिकेट्स? आरओसी, क्योंकि आपने आरओसी को ही डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आरओसी को ही फीस दिया है, तो सर्टिफिकेट वो इश्यू करेंगे और वो इश्यू होने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसमें डिपेंड करता है, आप प्राइवेट कंपनी हो तो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही स्टार्ट कर लो, अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो पहले आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद यू विल स्टार्ट योर बिजनेस इन केस इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, ओके आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्टर्ड ऑफिस। द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज मेंशन्ड इन द एमओए। अच्छा, व्हाट इज एमओए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कंपनी का जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी के जो लोग हैं, सपोज कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ प्रमोटर्स हैं, है ना, कुछ एक्सपर्ट्स आपने अपॉइंट किए हैं, तो ये सारे लोगों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे होते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनकी क्या ड्यूटीज हैं, ये लिखा होता है एमओए में। और एमओए में ये भी लिखा होता है कि कंपनी कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रही है, कब स्टार्ट करेगी, व्हाट इज द मेथड ऑफ डूइंग द बिजनेस। ठीक है, तो ये सारी इनिशियल चीजें कंपनी स्टार्ट करने से पहले एमओए में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और चीज क्या लिखी है, आपका जो कंपनी का जो ऑफिस होगा ना, उसका एड्रेस आपको एमओए में लिखना है। तो एमओए में कौन सी चीजें आएंगी? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके साथ साथ कंपनी का जहां पर ऑफिस है उसका एड्रेस भी लिखा होगा। ठीक है, और क्या लिखा है, ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी आर केप्ट इन द ऑफिस, है ना। तो अभी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस, ये सर्टिफिकेट होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे जाते हैं? कंपनी में नहीं रखे जाते हैं, कंपनी की जो ऑफिस है वहां पर रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए कि कौन सी बुक्स होती हैं, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, एनुअल रिपोर्ट्स, मिनट बुक, एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे बुक्स और डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो कहाँ पर रखे जाते हैं? ऑफिस में रखे जाते हैं, कंपनी में नहीं रखे जाते हैं,
कंपनी की ऑफिस में रखे जाते हैं, ठीक है। और कंपनी की ऑफिस का जो एड्रेस है वो कहां पर आपको मेंशन करना है, एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इसको भी आप फर्स्ट सेंटेंस है उसको हाईलाइट कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है कि एड्रेस को कहां मेंशन करोगे, सो इट इज मेंशन्ड इन द एमओए, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अच्छा, अब बिफोर इवन डिस्कसिंग दिस पॉइंट, अब कंपनी एक नेचुरल पर्सन है क्या, एक चलता फिरता इंसान है क्या कंपनी? नहीं, कंपनी इज नॉट अ ह्यूमन, इट इज नॉट अ लिविंग पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, करेक्ट। So I'll read this out. Artificial legal person. A company is an artificial person which is created by law. It can enter into contract with third parties after registration, है ना। तो इसलिए स्टार्टिंग में क्या लिखा था, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, उसके बाद ही आप अपना बिजनेस कर सकते हो। तो अगर कंपनी को किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना है, सो इट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड, करेक्ट। आगे क्या लिखा है, इट कैन बाय और सेल एसेट्स, बोरो मनी, open an account in bank, therefore only law can create joint stock company and only law can wind it up। मतलब क्या, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आएगी, लॉ से। और अगर कंपनी को बंद करना है तो भी आपको एक बड़ा सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आप क्या ताला लगा के बंद नहीं कर सकते हो कंपनी को, यू हैव टू फॉलो प्रोसीजर। उसमें भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं व्हेन यू वांट टू वाइंड अप द कंपनी, ठीक है। तो इसलिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है, सिर्फ लॉ ही जॉइंट स्टॉक कंपनी को एग्जिस्टेंस में ला सकता है और सिर्फ लॉ ही उसको वाइंड अप कर सकता है, ठीक है। सो there is a huge procedure for registration also and for winding up it also, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था, अगर कंपनी को किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, ठीक है। ये तो हमने चलो पढ़ लिया। ओके, नाउ लुक एट पॉइंट 5, सेपरेट लीगल स्टेटस। There is separate legal existence of the joint stock company. Okay, it is separate legal entity apart from its members. अच्छा, members कौन होते हैं, members के बाजू में लिखो shareholders, करेक्ट। इतना तो अभी हमको पता चल गया है that who are the members, members को shareholders भी कहते हैं। और shareholders कौन होते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट में आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, शेयर होल्डर्स आर नेचुरल पर्सन, ओके। तो हमको कभी भी कंपनी और शेयर होल्डर्स ये दोनों सेम है ये ऐसा नहीं समझना है। कंपनी इज डिफरेंट, कंपनी इज अ डिफरेंट लीगल एंटिटी, whereas its shareholders are different natural person। ये दोनों अलग चीजें हैं। कौन सी दो चीजें, कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स, दे बोथ आर डिफरेंट। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, शेयर होल्डर्स एक नेचुरल ह्यूमन पर्सन है, करेक्ट। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ये अभी हमने पढ़ा है ना। आर्टिफिशियल पर्सन है ना, चलता फिरता इंसान तो नहीं है कंपनी, करेक्ट। बट जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी इनमें इन्वेस्ट करते हैं, वो तो ह्यूमन बींग्स हैं, सो दे आर नेचुरल पर्सन एंड कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये रीजन है, इसलिए ये लोग क्या बोलते हैं, कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग एंटिटी हैं, ठीक है। Look at the next point, common seal. This is an important point. अच्छा, अब सपोजिटली कंपनी किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है ना, तो कंपनी खुद से साइन करेगी क्या, क्या कंपनी का खुद का सिग्नेचर है, ना, आंसर इज नो। हु विल साइन? तो इसलिए कंपनी के नाम का एक सील रहता है, कॉमन सील, एक ठप्पा रहता है, ऐसे यहाँ पर बना हुआ रहता है, इट इज अ ठप्पा, इट इज अ कॉमन सील, और उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है ना। नाउ एज अ कंपनी कैन नॉट साइन ऑन इट्स ओन, इट विल पुट अ कॉमन सील, ठीक है। वेन जहां पर सिग्नेचर लिखा होता है, क्या कंपनी खुद से साइन कर सकती है? नहीं। तो सिग्नेचर की जगह पर एक ठप्पा मार दिया जाता है कंपनी के नाम का, ठीक है। पढ़ लेते हैं ये पॉइंट। ओके, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये तो अभी हमने प्रूफ कर लिया। इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, राइट, चलता फिरता इंसान तो नहीं है, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ओके। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी खुद से साइन कर सकती है क्या? सो आंसर इज नो। तो सिग्नेचर के बदले क्या करेंगे, वो एक कंपनी का ठप्पा लगा देंगे। Every joint stock company has a common seal
इट इज यूज्ड एज द सिग्नेचर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉमन सील इज यूज्ड एज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। हाईलाइट कर लो इसको। इट इज द signature of the joint stock company. Okay. A seal has the name of the company engraved. तो seal में क्या लिखा होगा? कंपनी का नाम लिखा होता है। It is considered as the important property of the company. Therefore, a seal is kept in the custody of the company secretary. अब ये seal रखेगा कौन? ये ठप्पा जो इंक है और जो ठप्पा है वो किसके कस्टडी में रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी के। इसको भी अंडरलाइन कर लो, ये भी ब्लैंक के लिए आ सकता है कि कॉमन सील किसकी कस्टडी में पड़ा रहता है? हमेशा कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में पड़ा रहता है। ठीक है, बिकॉज इट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट। आगे देखो, therefore a seal is kept in the custody of the company secretary। ठीक है, ये पढ़ लिया। A seal is affixed in all important documents of the company, but document must be signed by the company secretary and minimum 2 directors। मतलब क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ ठप्पा लगाना काफी है क्या? नहीं, ठप्पा लगाने के बाद उसके बाद भी आपको ये कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर लगेगा और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स का भी सिग्नेचर लगेगा। मतलब क्या? यहाँ पर आता है ठप्पा, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगी, उसके बाद डायरेक्टर 1 साइन करेगा, डायरेक्टर 2 साइन करेगा। ये मिनिमम है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, कंपनी अगर किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रही है तो नीचे होता है ना दैट आई एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, फिर आप नीचे साइन करते हो। तो अगर कंपनी है इन केस तो ठप्पा लगेगा, फिर कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर आएगा और फिर 2 डायरेक्टर्स का सिग्नेचर आएगा। ठीक है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉमन सील। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, अब हमने पिछले जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो गया या पार्टनरशिप फर्म हो गया, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि उनकी लाइबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड थी। यहाँ पर लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। मतलब क्या? जब मैं वर्ड अनलिमिटेड कहती हूँ, सपोजिटली वापस से मैं आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एग्जांपल देती हूँ। सपोजिटली मैं खुद से बिजनेस चला रही हूँ, ठीक है, मेरा सोल ट्रेडिंग कंसर्न है। अब मैंने इतना सारा बैंक लोन लिया है और मेरे पास पैसे ही नहीं है चुकाने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना घर का फर्नीचर बेच के बैंक लोन थोड़ा थोड़ा रीपे कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है इसलिए मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच सकती हूँ। पर यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। मतलब क्या? कल को जाके अगर रिलायंस का जो ओनर है वो अगर बैंक लोन नहीं रीपे कर सकता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को बोलेगा क्या कि अपनी घर की प्रॉपर्टी बेच के मुझे पैसे दो? ऑब्वियसली नो। इसलिए इनकी ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनकी लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। ठीक है, I'll read this out. The liability of all the shareholders is limited up to the extent of capital unpaid face value of shares held by them। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो क्या आप कह रहे हैं ये लोग। अब सपोजिटली मैंने एक शेयर लिया है कंपनी का, सिर्फ एक ही शेयर लिया है जिसका वैल्यू है 100 रुपीज। अब ये 100 में से मैंने कंपनी को 25 दे दिए हैं, फिर उसके बाद मैंने 35 दिए, ये कितने हो गए? ये हो गए 60 रुपीज, करेक्ट। मतलब मेरा अभी भी कितना पेंडिंग है? 40 रुपीज मुझे देना है, करेक्ट। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है। मतलब क्या? आप शेयर होल्डर को बोल नहीं सकते हो कि आप अपनी घर की प्रॉपर्टी बेच दो, नहीं बोल सकते हो, इसलिए लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। एंड इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू। ये 40 रुपीज पेंडिंग है, तो कैन आई कॉल दिस 40 रुपीज एज अनपेड? करेक्ट। तो अब शेयर होल्डर को कितना पे करना है कंपनी को? सिर्फ 40 रुपीज। सो अ शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे द कंपनी ओनली रुपीज 40, है ना। 40 के ऊपर वो कुछ नहीं देगा, क्योंकि 40 देगा तो पूरा 100 कंप्लीट हो जाएगा। सो ही विल नॉट इवन गिव 41 रुपीज। और क्यों देगा ना, जितना अनपेड है उतना ही देगा, करेक्ट। सो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द वैल्यू ऑफ अनपेड। तो जितना अनपेड है वो सिर्फ उतने के लिए लाइबल रहता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ एडिशनल पे नहीं करेगा। हाँ, अब जो नेक्स्ट लाइन लिखी है ना वो इंपॉर्टेंट है। Therefore, private property of shareholder is not used for the payment of company's liabilities। तो कंपनी के पास अगर एक बड़ा सा लोन है तो आप शेयर होल्डर्स को बोल सकते हो क्या कि पर्सनल प्रॉपर्टी बेचो? ऑब्वियसली नॉट। तो क्या लिखा है?
प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर इज नॉट यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनीज लाइबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अच्छा, यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, अगर आपको अपने शेयर्स बेचने हैं तो आप किसकी परमिशन लेने वाले हो क्या? नहीं लेने वाले हो। तो यहाँ पर आप शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, इजीली किसी और को दे सकते हो या मार्केट में सेल कर सकते हो। ठीक है, आई विल रीड दिस आउट। द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल शेयर्स। टू बिकम अ मेंबर इट इज कंपल्सरी टू परचेज अ शेयर, है ना, अगर मेंबर बनना है तो शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, पर शेयर्स खरीदने के लिए आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है। अगर मेंबर बनना है कंपनी का तो शेयर्स तो ऑब्वियसली खरीदने पड़ेंगे, करेक्ट। आगे क्या लिखा है, द शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इट मीन्स अ शेयर होल्डर कैन बाय और सेल शेयर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पर आपको कोई कंपनी का परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। किस केस में? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। द शेयर्स ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो आप इजिली बाय कर सकते हो, इजिली सेल कर सकते हो, यू डू नॉट नीड टू टेक परमिशन ऑफ द कंपनी और एनीबडी। बट जब हम प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं वहां पर शेयर्स इजिली ट्रांसफरेबल नहीं है। तो मतलब क्या, जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो मतलब हमको किसी ना किसी का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब किसका परमिशन लेना है दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। व्हाट डू यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, अगर आपके पास प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं, तो आप इजीली सेल नहीं कर सकते हो, आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, उसके बाद ओनली यू कैन सेल। और ये हमने कहाँ पढ़ा, द शेयर्स ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। नॉट फ्रीली ट्रांसफर मतलब क्या, परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओके, अब कंपनी को ओन कौन करता है, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? सो आई विल राइट हियर, ओनरशिप ना सारे शेयर होल्डर्स के पास होता है ना, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स ने कुछ ना कुछ अपने पॉकेट से कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो अगर आज मैंने शेयर्स खरीदे तो मैं कंपनी की ओनर बन जाती हूँ, करेक्ट, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी, मेरा पैसा लगा हुआ है कंपनी के ऊपर, करेक्ट। सो आई डू नॉट बिकम द 100% ओनर। So I do not become the 100% owner of the company, ठीक है, but I have partial ownership. ओनरशिप तो है मेरे पास, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब कंपनी को मैनेज कौन करेगा, हु विल मैनेज? सो आई विल से कंपनी को मैनेज करेंगे उनके डायरेक्टर्स, है ना, जो कंपनी को एक्चुअली चलाएंगे इनटू द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है, सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। अगर मैं आपको आज पूछती हूँ हु ओन्स द कंपनी, सो ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स, और कंपनी को मैनेज कौन करेगा, डायरेक्टर्स, करेक्ट। इसलिए क्या लिखा है, ये दोनों चीजें अलग हैं, ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। और अलग क्यों है, क्योंकि ओनरशिप कौन करता है, हु ओन्स द कंपनी, शेयर होल्डर्स, एंड हु मैनेजेस द कंपनी, डायरेक्टर्स। ठीक है, सो आई विल रीड दिस पॉइंट क्विकली। ओके, क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में, देखो वही लिखा है, शेयर होल्डर्स वाली बात। Shareholders are the owners of the joint stock company. They elect their representatives to look after the day-to-day business. These representatives are called directors. So directors को choose कौन करता है, shareholders ही choose करते हैं। और जब वो एक बार directors बन जाते हैं, so they have to manage the company. ठीक है, क्या लिखा है आगे, the directors appoint professional managers and other employees for the day-to-day working. These employees वर्क ऑन सैलरी बेसिस, है ना, डायरेक्टर्स फिर और कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे। देयरफॉर ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज विद शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने आपको यही बताया अभी, करेक्ट। चलो क्विकली लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन, वेरी सिंपल एंड इजी पॉइंट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन? सपोजिटली रिलायंस कंपनी का कोई एक शेयर होल्डर है, वो मर जाता है, तो पूरी कंपनी बंद हो जाएगी क्या? नहीं ना,
तो कैन आई से, इसलिए देखो हमने क्या पढ़ा, कंपनी और शेयर होल्डर्स ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। अगर कोई एक शेयर होल्डर मर जाता है, इसका ये मतलब थोड़ी कि हम पूरी कंपनी बंद कर ले, राइट? सो कंपनी इज इन परपेचुअल सक्सेशन। वो कोई एक आदमी या दो लोग या तीन लोगों के मर जाने से या कुछ भी हो जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? आई रीड दिस आउट। इट इज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब इट मतलब क्या, कंपनी, ठीक है? Its existence does not depend upon its members. The death, retirement, insanity, insolvency of any member does not affect the existence of the company. तो अगर कोई एक शेयर होल्डर मर जाता है या इंसेन हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे कंपनी के बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? सो जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन, मतलब क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनी हमेशा कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस में रहती ही है ना? कोई एक के मर जाने से या एक का शेयर सेल करने से कंपनी बंद नहीं पड़ेगी, ठीक है? एंड द लास्ट पॉइंट इज मेंबरशिप। लेट अस रीड। इन अ पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 7। देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर्स। मतलब क्या, अगर आज मुझे एक पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो मुझे मिनिमम 7 लोगों की जरूरत है, और मैक्सिमम इज नॉट मेंशन, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। और अगर मुझे आज एक प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मुझे मिनिमम कितने लोग चाहिए, मिनिमम आई नीड 2 एंड मैक्सिमम आर 200, ठीक है? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है? तो पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, 7, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कितने मिनिमम लोग चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए प्राइवेट में, 200। अच्छा, मैक्सिमम 200 है, जिस दिन 200 का 201 हो गया वो कंपनी फिर पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग हैं, 200, करेक्ट? तो जिस दिन 200 क्रॉस कर जाएगी वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन जाएगी, ठीक है? सो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है? नाउ